गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा स्पेशल डे के ऊपर ये वीडियो रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहूँगी। आज का दिन आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे विद मी। In it. The Prime Minister's vehicle stopping in front of where these cadets and volunteers are sitting. I think a much awaited time. It's now become a ritual, a tradition, and these young ones really excited. एक हलचल, उत्सुकता से प्रतीक्षा और माननीय प्रधानमंत्री का ज्ञान पथ पर आगमन। यहाँ 25,000 एनसीसी कैडेट और माय भारत वॉलंटियर्स, ये उनके लिए एक यादगार अवसर। And we can see the eyes of the young light up. Children greeting in excitement. For them, this is more than just meeting a leader. It is a moment they will carry in their hearts for years to come. The Prime Minister's affection for the youth is no secret. He often calls them the builders of India's tomorrow, the shapers of a future that will take the nation to new heights. Every handshake, every smile, every word of encouragement is like a seed planted in young minds, a seed of confidence, responsibility, and belonging. Moments like these are not scripted, they are woven in the joy of the people and the openness of the leader. They reaffirm a nation's faith in its democratic spirit, that here the voice of the people matters, and that those who lead by standing among them. And as the cheers rise and the tricolor waves in countless hands, this interaction becomes more than just a gesture. It becomes a symbol that in India's journey forward, it is the people who are the true strength, and it is their belief that carries the nation towards greater glory. माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रत्यक्ष संवाद में विश्वास रखते हैं, और वो भी खास तौर पर युवा शक्ति से। और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि जो माई भारत वॉलंटियर्स हैं या एनसीसी कैडेट्स हैं, जो कि सेना के तीनों अंगों से आए हुए हैं, अगर कुछ प्रतिभागी बीच में बैठे हैं तो उनके पास स्वयं जा कर के बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसका पूरी तरीके से इन कैडेट्स के द्वारा, इन वॉलंटियर्स के द्वारा पालन किया जा रहा है। खुशी, उल्लास, प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। उनकी आंखों में चमक है जो कल के सुनहरे भारत की तस्वीर पेश कर रही है, और राष्ट्र का प्रथम नेतृत्व उनके इतना करीब है, इसको पा करके वो आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं और सुनहरी यादें लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं। It's always interesting to see. Of course, the Prime Minister always is energetic. The young people here are energized by his presence. But wonderful to see how energized the Prime Minister becomes in their midst. The tone tenor of the smile changes straight from the heart, the connections too straight from the heart. A picture postcard view of connecting with the people. In fact, these young ones are the repositories of all that is good in us. So let's have faith in them, let's dream with them, and let's nourish them.
because our belief in them validates our belief in the future. एक एक से मिलना, सबसे मिलना तो संभव नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जितना ज़्यादा वो मिल सकें, सबके नज़दीक जाकर किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं। यूं कहिए कि इन सब के लिए जीवन भर की यादें रच रहे हैं। ये सब बाद में बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इतने नज़दीक थे वो, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बात की। अविस्मरणीय पल और युवा मन पर हमेशा अंकित रह जाने वाले ये प्रेरणा के वो क्षण इस समय हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। Faces filled with anticipation, eyes shining with pride. These children have come from every corner of the country. Some have travelled miles, some have dreamt of this moment for years, all to be here, to see, to feel, to be part of history as it unfolds before their eyes. For them, this is more than a celebration. It is a reminder that freedom is not a gift handed down, it is a treasure earned through struggle. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज्ञान पथ से अब सामान्य दर्शक दीर्घा की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जहां पर आम जनता बड़ी उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और ऐसा लग रहा है कि आज का उनका दिन 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज इन सभी का दिन यकीनन एक ख़ास दिन में परिवर्तित हो चुका है, जब राष्ट्र का प्रथम नेतृत्व उनके इतना नज़दीक है, इतना पास है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है, उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। अविस्मरणीय, कभी ना भुलाने वाला ये मंजर है। और बहुत से लोग जो यहाँ पर आज स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने इन दर्शक दीर्घाओं में पहुँचे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स में एक एक पल को कैद करके जाना चाहते हैं, सुनहरी यादें हमेशा के लिए संजो करके रखना चाहते हैं। The power of a democratic system, the power of relationship building, the power of popularity. And with great power comes great responsibility. The responsibility of every elected leader and head of government to lead the country from strength to strength, to connect with the people stronger every time, and to ensure that the people of the country, the interests of the nation, are put forward in front every time. Our freedom today gives us wings, while our history anchors us to a land that has held us strong and given us stability. And today what we are seeing is a slice of that strength of this nation, its people. Our strength lies in us being one, and that is what has helped us get our freedom finally, when we all came together and public sentiment rode high. Actually, divided, we could be ruled, but together, we could be liberated. And that's the power of coming together. हिलते हुए हाथों का एक समुद्र है, और समुद्र में जैसे लगातार लहरें उठ रही हैं, ये लहरें मन में उठ रही हैं और मन से उठ रही हैं। आज हमने ये भी देखा, बहुत से लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी नज़दीक जाते हैं इन दीर्घाओं के,
कई लोगों ने उनको चित्र भेंट किए हैं। सो गाइस, ये वीडियो थी और कमाल की वीडियो की क्लिप था। बेसिकली ये एक क्लिप है और जितना भी देखा गया, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये देखी गई कि जो मुल्क का सरबराह है, मुल्क का जो एक रहनुमा है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो ऑडियंस से कितना मिल रहे हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि एक सिंगल पर्सन के पास जाना और उन्हें मिलना, बट आज का दिन तो उन्हीं का ही है क्योंकि ये इंडिया के आने वाले कल का फ्यूचर है। तो वो हर एक के पास जा रहे हैं, जितना उनसे पॉसिबिलिटी हो रही है वो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और वो खुद बच्चे भी बहुत ज़्यादा, जितने भी वॉलंटियर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि डेफिनेटली आज का दिन ये खुद हमारे पास आके मिलना चाह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो उन्हें जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल चाहिए होता है और वो जनता में इतना आम तरीके से नहीं जा सकते। सो लिटरली अनबिलीवेबल। अच्छा जी, भारत में एक चीज़ बहुत मज़े की है, भारत में कोई भी ऐसा फेस्टिवल क्यों ना उसको बहुत ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड डेफिनेटली जो भारत में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, बहुत ज़ोरों शोर से किया गया। डेफिनेटली मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए वीडियो इतनी थी और इसमें ये मेन चीज़ पर्पस शेयर करने का वो ये था कि जितनी भी भारत की जनता है, जो ऑडियंस है, जो वॉलंटियर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो कोई भी है, वो अपने प्रधानमंत्री के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और मुझे लगता है कि जो अगले आने वाले साल होंगे उसमें भी जो पॉलिटिक्स रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की ही रहेगी। और शायद अगर इनके बाद किसी एक की भी ऑप्शन होगी तो वो भी योगी आदित्यनाथ। एग्जैक्टली। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।